Class, today is your English grammar class, chapter 17, direct and indirect speech. Introduction. Read the following sentences carefully with special attention to the color word. She said. Said is reporting verb. I like chocolates. Quoted speech. Direct or quoted speech. Sarika said that she liked chocolate. That is conjunction. And indirect or reported speech. Direct speech. Direct speech when we report what someone says by repeating the spoken word. Direct speech स्टूडेंट्स वो होती है जब हमें कोई स्पीकर किसी और को अपने वर्ड्स उसी मतलब कि जो हमें किसी ने कहा है हम उसी वर्ड्स को एज इट इज जाके किसी और को बताएं. जैसे रोहित आई हैव टू स्लीप. रोहित सेड दैट आई हैव टू स्लीप. इनडायरेक्ट स्पीच होता है स्टूडेंट्स जब हमें कोई कुछ बताता है या कोई कुछ कहता है तो हम दूसरे को जब बताते हैं तो उसे अपने वर्ड्स में बताते हैं, उस वर्ड्स में नहीं बताते जो हमें किसी ने बोले हैं. डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स होती हैं एग्जैक्ट स्पोकन वर्ड्स में. इनडायरेक्ट स्पीच वर्ड्स स्पोकन बाय समवन आर रिपोर्टेड इन रिपोर्टर on words and exact spoken words are enclosed in inverted commas. These are quotation marks. Inverted commas are used in indirect speech and instead the word that is used to introduce reported speech after the reporting verb. No change in the person and tense of the original statement are made while reporting in indirect speech. A change in the person tense of the original statement are made while reporting in indirect speech. Reporting verb say and tell कैसे करते हैं देखिए हम. Say and tell are reporting verb. We use them mentioned below. We often use tell if we name both the speaker and listener. Okay, so the teacher told us that he was always fresh. We can say to relate listener to, but it is not common. She said to us that she was tired, but she told us that she was tired. Look more natural. Say to relate the speaker. Use to, do not use to tell. Sarika said to us she was happy. Next, change in reported speech, pronoun, tense and other words. Pronouns में रेफरेंस वर्ड है देखिए. फर्स्ट पर्सन जो है कोटेड स्पीच में होता है अकॉर्डिंग टू द. चेंज कैसे होता है अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. और प्रोनाउन सेकंड पर्सन में कोटेड स्पीच में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. और प्रोनाउन थर्ड पर्सन में कोटेड स्पीच में चेंज नहीं होता, रिमेन अनचेंज रहता है. चेंज इन टेंसेस की बात करें तो टेंस चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में. पास्ट टेंस में वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लास दैट process of tenses change is called tense. Okay, next modal verb form. Read this table students. modal verb form also sometime change. कभी कभी modal verbs की फॉर्म भी चेंज होती है. will, would, can, could, must, had to, shall, should, may, might. Okay students, next is no tense change. कोई टेंस चेंज नहीं होता है इनडायरेक्ट स्पीच में. रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो या रिपोर्टेड वर्ड्स ट्रूथ हो, ठीक है, ये रिपोर्टेड वर्ड एक्सप्रेस कर रही हो यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ को, और रिपोर्टेड वर्ड्स रेफर करते हो अनरियल सिचुएशन को. टाइम और प्लेस वर्ड की बात करें तो मच टाइम कैन पास बिटवीन व्हेन वर्ड्स आर स्पोकन व्हेन वर्ड्स आर रिपोर्टेड. सिमिलरली द प्लेस वेयर वर्ड्स एंड प्लेस वेयर वर्ड्स आर रिपोर्टेड कैन बी डिफरेंट. दैट्स व्हाई रेफरेंस वर्ड टाइम for time and place change in reported speech. Vibhu said there is a birthday party tonight. Vibhu said there was a birthday party last night. Common reported speeches के time और place change कैसे करते हैं? now, then, at that time. और direct में tonight, last night. indirect of interrogative sentence के जनरल रूल्स हैं स्टूडेंट्स. देखिए हमें दे रखे हैं जैसे आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है चेंज होते हैं असर्टिव सेंटेंस में और वर्ब शिफ्टेड होती है नॉर्मल प्लेस में. इनडायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टेंस ऑफ वर्ब एंड टाइम
and place of word are changed as per aforesaid rule, and the marks of interrogation is removed and replaced by full stop. The reporting verb is changed into asked, inquired of, demanded of. Indirect यस नो क्वेश्चन यूजुअली बिगिन होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, जिसे आपको देखें इज, एम, आर, वॉज, वर एक्सेट्रा. चेंजिंग यस और नो इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इफ और वेदर में. और देखिए अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमें दे रखे हैं WH क्वेश्चंस, तो हम क्या करेंगे, कंजक्शन में इफ और वेदर का यूज़ करेंगे. और इनडायरेक्ट और इंपेरेटिव सेंटेंस के जनरल रूल्स दे रखे हैं. कमांड हो, ऑर्डर हो, एडवाइस होती है, हमारे इंपेरेटिव होते हैं. पॉजिटिव सेंटेंस में इन्फिनेटिव और नो कंजक्शन होती है. नेगेटिव सेंटेंस में नॉट, टू प्लस वर्ब, ड्रॉप द वर्ड डू नॉट. ओके, वर्ड लाइक सर, मैडम आर रिमूव्ड एंड वर्ड रिस्पेक्टफुली इज एडेड. ओके, नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. जनरल रूल दे रखे हैं. मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज चेंज इनटू फुल स्टॉप, और एक्सक्लेमेटरी फ्रेज इज रिप्लेस एक्सक्लेम विद जॉय, रिग्रेट, सरप्राइज एक्सेट्रा. और कनेक्टिव किससे होता है, डेट से. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन. थैंक यू.